Stressing about what happens inside the examination hall? Does this online exam thing happens? Stressed about your whole preparation going to drain just because of examination hall fear? It's okay because I got your back. Hi guys, you are at Aditi's and this is my little space on the internet. I honestly did not open this channel for educational purpose, but since I posted this video, I have not stopped receiving your comments and messages about doubts regarding this exam. So here I am. I'll be telling you everything that I have experienced and learned through my journey. You'll be seeing fun videos soon, but let's just get done with the padhai part first. So, shall we dive in? So I gave two exams last year. One was AIMS NORCIT and the other was ASIC Nursing Officer exam, and I cleared both of them. And I must say the experiences of both of these were poles apart. I'll tell you examination hall experience of AIMS NORCIT क्योंकि अब ESIC तो साथ में ही होगा. Guys, my experience of prelims and mains was very different. NORCIT 7 का prelims was the first CBT exam that I ever gave, and mains के time पे obviously I had the experience of prelims. If you have experience, you do better apparently. First of all, before entering the examination hall, eat something. भूखे पेट मत जाना. Our prelims reporting time was 6:30 a.m. So I woke up at around 5 a.m. and touch wood I can sleep good the night before in exam as well. So I slept around 9 to 9:30. But I know anxiety or stress होता है, but try to keep your calm and sleep early. That way you'll be able to wake up fresh. आई न्यू कि मेरे को ब्रेकफास्ट करना है, सो अगर रिपोर्टिंग टाइम 5 AM भी होता आई वुड हैव इटन समथिंग और मैं पहले ही उठ गई होती फॉर श्योर. क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हो और जब आपका एग्जाम स्टार्ट होता है उस टाइम के बीच में भी बहुत ज़्यादा टाइम होता है. लाइक इन आवर केस रिपोर्टिंग टाइम वॉज अराउंड 6:30 AM और एंट्री स्टार्टेड एट 7:30 to 8:30 और एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ था 9 to 10:30 था एग्जामिनेशन. तो आप देख लो 6:30 to 9 AM, it's like almost 2.5 hours. तो आप थक जाओगे और एग्जाम देते हुए भूख और लाइट हेडेडनेस का स्ट्रेस हम नहीं ले सकते फॉर श्योर. ओके गाइस, सो चेंज ऑफ बैकग्राउंड. मैं बाहर आ गई. तो मैं कहाँ पे थी कि हैव ब्रेकफास्ट. ठीक है, ब्रेकफास्ट करना इज़ वेरी एसेंशियल. देन एज सून एज यू एंटर योर एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद सबसे पहले आपकी चेकिंग होगी. तो चेकिंग में मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ. फॉर गर्ल्स, you should tie your hair in a ponytail or braid, whatever you want to do, or leave your hair open because आप braid या वो करोगे ponytail तो use that पतला वाला rubber because फैंसी स्क्रंचीज या क्लचेस या आप कोई भी हेयर पिन्स लगाओगे वो लोग खुलवा देते हैं एंड देन दिल कीप इट इन अ कार्टन और वो कार्टन में सबके एक साथ रखेंगे. सो देर इज़ नो गारंटी दैट यू गोना फाइंड इट बैक. सो इट्स बेटर आप पहले से ही ना पहनो. सो सेकेंड पॉइंट इज वेयर चप्पल्स और स्लाइडर्स. आई वोर चप्पल्स बट देर वॉज नो सच इशू फॉर द वंस वेयरिंग शूज़ also, but you never know कहाँ पे कैसी checking होगी, so you have to be on the safer side. You should wear loose clothes, preferably light and with less or no pockets. And do not forget your admit card and ID card, and pen and paper is not allowed in the examination hall. Admit card के पीछे you'll have to do the rough work and pen will be provided in the examination hall, पर वो बाद में वापस ले लेते हैं. So yeah, this was pretty much about the checking wala part. So as soon as your checking is done, you'll be tied some neon bands in your wrist और आपको examination hall में भेज देंगे. Make sure you reach examination hall on time because then you'll have a moment to sit before the exam starts. But अगर late भी हो जाओ तो do not panic, do not stress. Clear your mind beforehand कि आप late भी हो सकते हो because line इतनी लंबी होती है. So you do not have to worry, आपके बिना exam start नहीं होगा. Then have a seat, take a moment to get your mind together because after seeing so many candidates, your mind will be a chaos. और उसको एक साथ ले आना. Do not lose your confidence by seeing other people. Have faith on yourself. So I sat on my seat like 30 to 40 minutes beforehand और वहाँ पे स्क्रीन पे टाइमर चला होता है backwards and that timer also stresses you a lot. और वो टाइमर इसलिए होता है that इतने टाइम में you'll be able to unlock your screen. 5 to 10 minutes पहले you are asked to enter your ID and password और screen unlock हो जाती है, but the timer is still on और अभी questions वाली screen नहीं आई है. You just get a screen of instructions and best wishes and all और नीचे timer चला होता है. In these last 10 minutes, your mind goes through your full preparation journey and you realize that how important this exam is for you. I would give you one tip here that expect the unexpected. Do not sit there and expect that paper will be very easy and you'll be able to solve every question. ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड सोचो कि पेपर टफ ही आने वाला है और आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं आएंगे. अगर पेपर इजी आता है you'll be happy और अगर टफ आता है you'll be prepared for that too.
अभी CRE का ही एग्ज़ाम देख लो, दैट वाज सो अनएक्सपेक्टेड एंड वियर्ड, बट यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ठीक है, आपको अपना बेस्ट देना है इन एवरी पॉसिबल सिचुएशन। जब आपका लास्ट का 1 मिनट स्टार्ट होगा, 60, 59, 58 सेकेंड्स लेफ्ट, उस टाइम पे योर हार्ट विल स्टार्ट धक धक, और आपको डर लगने लग जाएगा, नो मैटर इन वट मेडिटेटिव स्टेट यू वर सिटिंग इन। अब मेरे साथ भी यही हुआ, 3, 2, 1 और एकदम से स्क्रीन फ्लैश हो गई और आई वॉज सो कन्फ्यूज कि क्या करना है। एंड राइट बिलो द अपर राइट कॉर्नर वहाँ पे एक और टाइमर स्टार्ट हो गया, और वो टाइमर 18 मिनट्स तो दिखाता ही नहीं, 17 मिनट्स 59 सेकेंड्स, 58 सेकेंड्स, 57 सेकेंड्स, मतलब 20 से 30 सेकेंड तो मेरे को स्क्रीन को एनालाइज करने में चले गए। प्लीज़ ऐसा मत करना, स्क्रीन को देखकर पैनिक मत होना, उस टाइमर को देखकर पैनिक मत होना। विद इन 5 सेकेंड्स एनालाइज योर स्क्रीन फटाफट। आई टेल यू रफली कि कैसी स्क्रीन होती है। तो ये आपकी स्क्रीन है, यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, टॉप में ऐसा होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा विद ऑप्शंस। एक आपके पास ऑप्शन होगा सबमिट करने का, दूसरा होगा रिव्यू लेटर वाला ऑप्शन। तो अगर आप सबमिट करते हो तो वो फाइनलाइज हो जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू चेंज योर आंसर लेटर ऑन। बट अगर आप रिव्यू में डालते हो देन यू कैन कम बैक एंड चेंज योर आंसर वट एवर यू हैव मार्क्ड। और यहाँ पे क्या होगा, टाइमर चल रहा होगा, टाइमर के नीचे हर एक क्वेश्चन नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कुछ, ऐसे इस शेप का क्यूब्स या कुछ ऐसे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 सारे 20 क्वेश्चंस आपके पास होंगे। जो आप मार्क करते जाते हो वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आप रिव्यू में डालोगे आई थिंक वो ब्लू, पता नहीं कौन से कलर का होता है, उस कलर में हो जाएगा, और जो आप छोड़ रहे हो वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। और गाइज मेक श्योर दैट यू सबमिट द आंसर्स जो आपने रिव्यू के लिए छोड़े थे, अगर आप उनके बारे में श्योर हैं, क्योंकि अगर आप सबमिट नहीं करोगे दोज आंसर विल नॉट बी कंसिडर्ड। रीड योर क्वेश्चंस ट्वाइस, अगर आ रहा है तो उसको राइट अवे मार्क कर दो। अगर आपको लग रहा है कन्फ्यूजन है देन उसको रिव्यू में डाल दो, एंड वंस यू आर डन विद द क्वेश्चंस दैट आर श्योर ऑफ देन कम बैक टू दोज क्वेश्चंस और फिर उनको करो जिसमें सोचने की ज़रूरत पड़ रही है। और जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आ रहे, skip those questions, there is no need to do those questions. The trick here is to do least negative questions, और in the second section you'll get more comfortable with the timer वाली चीज़, तो second section से आपका better होने लगेगा। बट आप पहले section से ही try करना कि आप अच्छे से कर पाओ। और जो क्वेश्चंस पीछे छूट गए हैं, डू नॉट थिंक अबाउट दोज क्वेश्चंस। अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, बहुत सारे छूट गए हैं, जस्ट डू नॉट थिंक अबाउट दैट एंड फोकस ऑन वन क्वेश्चन एट अ टाइम। एक क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दे रहा है, जस्ट फोकस ऑन दैट एंड यू नो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, उस टाइम पे स्ट्रेस नहीं लेना दैट माई फर्स्ट सेक्शन वॉज यू नो नॉट वेरी वेल। आई मेस्ड अप माई फर्स्ट सेक्शन इसी वजह से, क्योंकि मैं पैनिक और कन्फ्यूज़ हो गई थी। बट प्लीज़ डू नॉट डू दैट, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपकी रैंक बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है। आधे क्वेश्चंस तो मैंने ऐसे ही टिक कर दिए थे बिकॉज टाइम जा रहा था, तो डू नॉट डू दैट। उस टाइमर की वजह से स्ट्रेस मत लेना, यू हैव गॉट दिस, और आप कर लोगे टाइम पे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। Some of you were asking me about my notes and about asking me about important topics. So guys, I'm not a teacher. You should trust professionals on that. I'm just like you guys. I'm just trying to help you through my experience. But उन चीज़ों के लिए you should trust professionals कि important topic क्या है क्या नहीं है. But एक exam निकाल के मैं अपने आप को ही नहीं बोल सकती ना that I have got it all. और जहाँ तक रही नोट्स की बात, तो मैंने नोट्स अपने सारे अपनी कोचिंग से बनाए थे, नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ से। तो दे हैव दिस टर्म एंड कंडीशन कि आप वहाँ का कंटेंट कहीं शेयर नहीं कर सकते। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मैं अपने नोट्स शेयर नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ कोचिंग वाले वो अलाउ नहीं करते हैं, और इन केस उनको पता लग गया तो you know what I mean. So but I'll try to help you guys as much as I can and share whatever I have learned through my experience. और जो भी मतलब इस एग्ज़ाम में मैंने खुद से चीज़ें पढ़ी थी और जैसे मैंने चीज़ें की थी, that I'll definitely share with you. And so yeah guys, thank you for watching, and like, comment, share and subscribe to my channel, and above all don't forget to smile.